फर्स्टली लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आप ओलंपिक्स में जा रहे हो, क्वालिफाई किए हो. सो लेट मी जस्ट स्ट्रेटली गेट टू द पॉइंट. जब पेरिस आई मीन जब टोक्यो के जब टोक्यो एंडेड तब आपने एक काउंटडाउन पेरिस के लिए पोस्ट डाला था कि आप वहां पे जा रहे हो, एंड आज फाइनली आप वहां पे हो. हाउ डिड यू फील अबाउट इट? लाइक हाउ इज द जोश? Obviously, it's a high. So yes, the day Tokyo has ended, I have posted a post on social media, and by saying that countdown to Paris, and finally I have been going to my uh, like ultimate dream, which is my ultimate dream is to go for the Olympics and win medal. So far, अभी तो मैं like I'm going, अभी मेडल जीतना बाकी है. So yeah, I mean, it's like a dream come true for me. I'm really happy that I'm going for Olympics. I'm going to represent my country there, and hopefully I'll come back with a medal. We really hope that and pray that that happens. uh, आपकी journey, like you started as a runner, and then then you just, that one question probably changed your whole life and the nation's life in a way. So how did that switch happen, and how has boxing as a sport had helped you evolve? So yeah, I mean, I was before coming into boxing, I was into athletics. 100 meter, 200 was meter was my event, and with along with my dad, I used to go for training, and there I have seen girls in every sport except boxing. Yes. And I asked my father casually कि पापा boxing बस लड़के ही कर सकते हैं क्या लड़कियां नहीं? And he said no बेटा, लड़कियां भी कर सकती है, बट हमारे सोसाइटी में लोगों को ऐसे लगता है कि लड़कियां ये स्पोर्ट करने से उनको मार लग जाएगा, देन नो वन विल मैरी देम. सो ये सब था. तो देन आई टोल्ड माय डैड कि पापा नहीं, मैं दिखाऊंगी, आई विल शो एवरीवन दैट कि वी गर्ल्स आर आल्सो इक्वली स्ट्रांग एज मेन. सो दैट्स हाउ आई टुक अप बॉक्सिंग. एंड उसके बाद आई वाज द फर्स्ट गर्ल टू स्टार्ट बॉक्सिंग इन माय डिस्ट्रिक्ट. एंड देन ईच कंपटीशन में मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, वहाँ पे मेडल जीता. देन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप. देन आई वॉन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड इन 2011. तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ. और बॉक्सिंग इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ. तो like boxing has taught me a lot of things. Like through boxing I could travel different country. I made new friends. लोगों से मिलना जुलना हुआ. like दुनियादारी के बारे में सीखा मैंने. तो like boxing ने boxing has taught not just to be strong inside the ring but also in life too. So इसीलिए boxing plays a major role in my life. तो इसीलिए आई एम जस्ट डेडिकेटेड टुवर्ड्स माय स्पोर्ट. You gave a very important lesson of that dunyadari when you said. So that's matlab, it's good that sport could teach you this also. Boxers, Nikhat, in general, they look so much in rage and ferocious. So when they come into the ring, is it like they look so that they're like, of course they're going to knock, the whole intention is knock the opponent out, but the rage, does this help the boxers to focus? And like, how do you also bring in so much power, and how do you channelize your energy when you're inside the ring? Obviously, I mean, every boxer want to be aggressive inside the ring, but I mean, not all the boxer, but like it depends on how they think of themselves. For me, when I'm calm and composed inside the ring, I have more clear thoughts in my mind, so Mhm. I can focus, what I need to do in the second round, in the third round. So like बॉक्सिंग में इतना टाइम नहीं मिलता आपको सोचने का. इट्स लाइक अ चेस गेम. आपको एक पंच मारने से पहले आपको 4 मूव पहले सोचने पड़ते हैं. Correct. तो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आपको पंच मारना होता है, काउंटर मारना होता है, री अटैक लेना होता है. तो आपको इतना टाइम नहीं मिलता सोचने का. तो जब व्हेन यू आर एंग्री एंड यू आर वेरी अग्रेसिव, वहां पे आपका माइंड नहीं करता है काम. Okay. So
I take that, I think like this. So वो मेरा परसेप्शन है ये। तो मैं अपने आप को जितना रिंग में काम रखूं, जितना फोकस रहूं, उतना मेरे लिए अच्छा होता है। तो दैट्स हाउ आई लाइक टू बी इनसाइड द रिंग। एंड यस, आई मीन बॉक्सर्स का एक ही एम होता है कि जितना हो सके अपोनेंट पे पंचेस फेंके, और हिट बट डोंट गेट हिट। तो ये आप हर कोई ये माइंडसेट से चलता है। तो सब यही मतलब बॉक्सर्स होते हैं ऐसे। बट एट द एंड ऑफ द बाउट, वंस द बाउट फिनिशेस, तो एक दूसरे को हक करते हैं, एंड वी फिनिश इट इन अ गुड वे। हाँ मतलब इन जनरली दैट्स द परसेप्शन क्रिएटेड। बट आपने या यू हाईलाइट अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बॉक्सिंग, जब आपने कहा कि यू नीड टू प्लान योर 4 moves ahead कि of what are you going to do, and that time like being calm and composed helps you. So in generally where boxing is actually look like more of a physical sport, people देखते नहीं, there's a mental aspect to it. So what do you do? आप क्या activities या techniques अपनाते हैं to for you to stay calm? Like do you meditate, or there's any other mental exercise that you do? Yeah, I mean, I do meditate, I do visualization. So many interviews I have said that, before my competition or before my bout, I feel nervous. So to remove that nervousness, I do breathing exercises, I visualize, I listen to music, which, keeps me focused and calm. So these things I do. Otherwise, like when I'm losing weight, always try to save my energy. I don't waste my energy like talking a lot, or going for a shopping out. And I mean, थोड़ा अपने आप को मैं कंपोज रखती हूँ। आई एम क्वाइट बिफोर एनी कंपटीशन। दो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, मैं बहुत बातें करती हूँ। तो बट कंपटीशन से पहले आई टॉक लेस, बिकॉज वेट रिड्यूस करते टाइम आपके पास बहुत एनर्जी नहीं होती है, तो वो सब एनर्जी मैं अपने आप में सेव करके रखती हूँ। तो या दैट्स नाइस टू हियर कि आप अपने आप को काम एंड कंपोज रखते हैं थ्रू वेरियस मींस। निखित, मैं ना थोड़ा लाइक आई टेक यू बैक टू अ लिटिल बैक। सो जब वी रेड वन ऑफ द आर्टिकल्स दैट some when you were 12 years old and somebody punched you and you had like a black eye and you said I'm going to give it back to her the next time, and उससे पहले भी, हिम। हाँ हिम सॉरी, या सो या फ्रॉम देयर कि अब तक जैसे लाइक व्हेन योर फादर पुश्ड यू इनटू दिस, so how has his support been so monumental for you to grow as an athlete? Everywhere I have said this, that whatever I am today is just because of my dad's support. And I remember like how he used to encourage me since day one. जब भी कोई मतलब अगर कभी ऐसा मन भी करता हो ट्रेनिंग नहीं करने का, मेरे पापा मुझे बोलते चलो चलो, नहीं ट्रेनिंग करना है ना। यू मतलब तुम्हारा सपना है इंडिया को खेलना, अगर ऐसे ऐसे छुट्टी मारोगे तो आपका ये सपना पूरा नहीं होगा, फिर आप इंडिया रिप्रेजेंट नहीं करोगे, इंडिया के लिए मेडल नहीं जीत पाओगे। तो दैट्स हाउ ही यूज्ड टू पुश मी। फिर मैं कोई कंपटीशन जाती हूँ तो हमेशा मेरे साथ ट्रैवल करते हैं, कोई कैंप में भी जाती हूँ तो मेरे को ड्रॉप करते हैं, और कैंप खत्म भी हो जाते हैं तो मेरे को पिकअप करने आते हैं, चाहे कहीं पे भी हो, विशाखापट्टनम हो, दिल्ली हो, भोपाल हो। तो ही यूज्ड टू ऑलवेज कम। तो लाइक आज के टाइम, लाइक आज भी देखोगे ना, हिज life is around Nikhat only. So he is like totally dedicated towards me. मेरा हर अभी मैं यहाँ हूँ, जर्मनी में हूँ, पेरिस के लिए तैयारी कर रही हूँ। बट आई नो वहाँ हैदराबाद में पापा पूरे लगे पड़े होंगे, मेरे पोस्टर्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे, मेरे जो भी काम है ऑफिशियली काम, वो सब मेरे पापा कर रहे हैं। तो ही इज लाइक ऑलवेज बिहाइंड मी, ही इज ऑलवेज देयर फॉर मी। तो उनका सपोर्ट बहुत मेजर मतलब रोल प्ले किया है मेरे बॉक्सिंग करियर में। तो लाइक मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे ऐसे पापा मिले हैं। आई होप कि हर लड़की को ऐसे, मतलब हर लड़की ने, हर बच्चों को ऐसे पापा मिले, पेरेंट्स मिले जो उनको सपोर्ट करे स्पोर्ट में। ये मतलब नाइस। हम लाइक उम्मीद करते हैं कि जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देखे, आई होप दे पुश देयर किड्स टू परस्यू स्पोर्ट एज अ करियर, कंसिडरिंग द यस। रिजल्ट आप जो दे रहे हो।
from Nikhit, आपने from breaking stereotypes to asking the right questions, like even challenging the authorities, you have done everything. So कभी ऐसा मोमेंट आया कि कहीं पे भी कि somebody has looked up and says like, हाँ आप बेटा, आप जो काम किए हो यहाँ पे फ्रॉम निजामाबाद और टू एनीवेयर, कि कोई कोई स्टोरी ऐसी है जहाँ पे आपको किसी ने बोला कि नहीं, जो आपने किया वो बहुत अच्छा किया, आपको वहां पे देख के हमें खुशी मिलती है? कोई ऐसे नेबरहुड में स्टोरी या कुछ ऐसी है आपके पास हमें बताने के लिए? ऐसे तो बहुत है। आई मीन इवन माई आपकी स्कूल फ्रेंड्स फेवरेट ऑल्सो। आपकी फेवरेट जो ऐसे आपके दिल के छू गई हो? दिल को छूना तो सबके मतलब ऐसे तो बहुत है, मतलब क्योंकि आई नो व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, एंड व्हेन पीपल रिकॉग्नाइज योर हार्ड वर्क सो ऑब्वियसली इट टचेस यू. So राइट। I remember one of my school friends once, she called me. um, तो शी वॉज लाइक ट्राइंग टू कनेक्ट विथ मी. बहुत बार उसने ट्राई किया, मेरे पापा को मेरे मम्मी से बात किया था. शी डिडंट हैड माय नंबर. तो जब व्हेन आई वेंट बैक टू हैदराबाद एंड देन आई गॉट टू नो दैट कि शी इज ट्राइंग टू कांटेक्ट यू, देन आई टुक हर नंबर फ्रॉम माय डैड. फिर मैंने उसको कॉल किया था. तो शी वाज सो हैप्पी एंड शी वाज वेरी सरप्राइज कि मैंने उसको कॉल गलती। किया. And then she was talking about all our memories, मतलब past memories की, like how I used to tell her कि मुझे बहुत मतलब मुझे मेरे बहुत बड़े ड्रीम्स है, मुझे इंडिया के लिए मेडल जीतना है, मुझे मुझे नाम कमाना है, जहाँ मुझे लोग पहचाने. और हाउ शी वाज टेलिंग मी कि मेरा सपना था सलमान खान से मिलना, वो कैसे मैंने पूरा किया. बिकॉज आई रिमेम्बर माई फ्रेंड्स यूज टू टेल मी इन माई स्कूल डेज की अरे सलमान खान का घर तो मुंबई में है, तू मुंबई जाके मिल सकती है. सो हाउ आई यूज टू टेल देम कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं मिलना है, ऐसे तो लाखों करोड़ों लोग मिलते हैं. बट नेक्स्ट डे ही वोंट बी रिमेम्बर ना कि मैं कल किससे मिला था. मुझे अब ऐसा ऐसे मिलना है कि मतलब सलमान खान को भी पता चले दैट ही इज मीटिंग निखत करके. तो आज जब मैं मिली थी तो उन लोग ने देखा होगा वो सब न्यूज़ रील जो मैंने पोस्ट किया था. तो दैट्स हाउ शी वाज सो हैप्पी कि निखत जो तूने बोला वो करके दिखा. आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. तो दैट टच्ड माय हार्ट. Wow. I mean, we saw the reel and everything, and हम्म. hope you connect with other friends too, जिनसे आप बात करें and ऐसे ही प्रेरित करते हैं. What happens, Nikhil, when you see an athlete's journey? बहुत लोगों का, there's a contribution by done from every side. So, what do you think that the role of foundation like Grow Sports play in the life of an athlete, and how has the foundation helped you also? If you could take, like, how is your journey with the foundation? I mean, since I have joined the Go Sport Foundation, आई थिंक मेरे को कोई चीज की कमी होने नहीं दी है गो स्पोर्ट्स ने मेरे को. इवन लाइक एज एज आई सेड कि जब मेरा मतलब डाइट प्लान शुरू हो जाता है तो मुझे प्रॉपर न्यूट्रिशन खाना नहीं मिलता था कैंप में. तो Mhm. मैं दिनेश को फोन करती थी, दिनेश मेरे लिए खाना मतलब जो भी है प्रोटीन स्टफ लाइक नॉन वेज, जैसे फिश हो गया, प्रॉन्स हो गया या चिकन मटन जो भी है वो दिल्ली से ऑर्डर करते, क्योंकि पटियाला में मिलता नहीं था वो हाँ, स्टॉक. तो दिल्ली से मुझे पटियाला भी जाते थे. कोई सप्लीमेंट हो यूके से ऑर्डर करना, है ना. तो लाइक अगर कोई इवन इक्विपमेंट हो जिससे मेरे को रिकवरी के लिए चाहिए हो, लाइक ही इज लाइक इफ एनी टाइम आई कॉल दिनेश ही इज ऑलवेज देयर. So like I'm really like blessed to have such a foundation who who's there to support me anytime, anywhere. So and like अभी मैं ओलंपिक्स जा रही हूँ. मेरे को मतलब सारे चीज की कोई कमी होने नहीं दिया है. एंड होपफुली सबकी मेहनत रही है मेरे पीछे. एंड आई होप कि मैं वहां से मेडल जीत के आऊं और अपने कंट्री का हर किसी की जिसकी पीछे मतलब जिसकी मेहनत है मेरे पीछे उन सबको मैं प्राउड फील कराऊं मैं. And I think कि हर एथलीट who is very talented in her or his sport, I think um, ऐसे बहुत सारे फाउंडेशंस चाहिए जो
they should come forward and support the athletes, because especially I mean, I would say from the grassroots level, because वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। इंडिया में तो ये है कि एक एक बार कोई मेडल जीत जाता है तो देन पीपल विल गो अराउंड देम। बट मैटर ये करता है कि जब ग्रास रूट लेवल से आप सपोर्ट करते आए हो, और जब वो एक स्टेज पे पहुंच जाता है, तो वहां पे एक अलग ही मतलब एक वो होता है कि अरे हमने इस एथलीट को इतने छोटे टाइम से हमने सपोर्ट किया, और आज इसने मतलब ये इतने बड़े लेवल तक पहुंच गया, तो इट्स मतलब इट फील्स नाइस। तो so I believe कि ऐसे foundations, every foundation should come forward and support athletes for their dream to win medal for India। तो फिर तो इंडिया के लिए तो लाइक मेडल जीतना इतना बड़ी बात नहीं होगी। Yeah. I mean, absolutely आपने जो बोला सही बोला, and thank you for your appreciation, and I hope आप अपनी dream पूरी करेंगे with the Olympic medal, and we'll have an interaction again after that. इंशाल्लाह, Yeah, इंशाल्लाह, या। yeah. Nikhil, if I have to like just think, talk about the last 2 years, probably उसके बीच में you had like two world championships, then CWG gold, and recently the Eldora Cup, which has happened. So, is there any particular win which is closer to your heart? Obviously, the most special win is my first World Championship gold, because since then people started, recognizing me. People got to know who actually Nikhat Zareen is. So that is very special to me. Even, you know, when I won that World Championship gold, I was trending on Twitter on, on number one, and all the big celebrities, big people, even our Honorable Prime Minister, President Ma'am, and Home Minister, and Salman Khan, all the big, big dignitaries, people have, congratulated me. So I was like on the, like, क्या बोलूं, I was on cloud nine. I think ट्रेंड तो अब चलता रहेगा निखत जरीन का. So also जैसे like do you have any non sporting ideal, could be like अगर आपके sporting ideals also is okay, but do you have any non sporting ideal? आई मीन ऐसा स्पेसिफिक कोई एक नहीं है, ऐसी हर हर इंसान की अलग अलग स्टोरी होती है विच Yeah. इंस्पायर्स मी। सो आई लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आई मीन ही इंस्पायर्स मी अ लॉट। आई मीन द वे ही वर्क्स हार्ड, ही इज वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज स्पोर्ट, how disciplined he is. So that's that inspires me. Also, I like MS Dhoni, Sachin Tendulkar sir. So like these are the big players which inspires me, and मेरा ड्रीम है कि एक दिन मैं इनसे मिलूं और इनकी मतलब पर्सनली इनके बारे में मतलब स्टोरी सुनूं उनके खुद खुद के मुंह से। तो बट मैं सच अभी आई वाज लकी टू मीट सचिन सर रिसेंटली। तो मैंने उनके बारे में मतलब उन्होंने जब बात की थी, आई वाज लाइक, आई क्या बोलूं, मतलब आई वाज स्टार स्ट्रक जब उनके बारे में मैंने मतलब उनकी स्टोरी उनके मुंह से सुनी थी। So yeah, these are the athletes which inspires me. Nice. निखित, what does your off day look like? Like अगर आप ट्रेनिंग पे नहीं हो, घर पे नहीं हो, क्या पसंद करते हो आप करना? Um, I mean, if I'm at home and I'm not like I don't have any competition, so I would go out for shopping with my sister, sometimes with my family, and then हैदराबाद का खाना तो पता ही होगा आपको, तो मैं स्ट्रीट फूड ट्राई करती हूँ। एंड ऑल्सो लाइक लाइक इफ आई ऑल्सो लाइक टू ट्रैवल, तो अगर मेरे को कभी ऐसे टाइम मिलता है तो आई आई गो ऑन ए ट्रिप। कभी माउंटेन्स में जाती हूँ, कभी गोवा ट्रिप पे चले जाती हूँ। कोई तो रीसेंट, है कोई फेवरेट? रिसेंट तो लाइक अभी फिलहाल तो लाइक 2-3 ट्रिप ही मारे मैंने। तो अच्छा. द बेस्ट वन वाज द Phuket one. हाँ. I really enjoyed and I really had fun there. So and post Olympics भी
I'm planning for a trip. Hopefully, you know, everything goes well at Paris. Then खुशी खुशी जाऊंगी मैं वहां पे. आपने बोला कि आप जब बॉक्सिंग बाउट में जाने से पहले यू लिसन टू म्यूजिक. व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू जनरली लिसन? Depends on my mood. I mean, mostly I like to listen Punjabi music. अच्छा. And kabhi samjho, like if I'm really in jolly mood, I want to just shake my legs. So I also listen Haryanvi songs also. And मतलब थोड़ा वाइब मैच हो जाता है ऐसे, मतलब that's it. और साउथ इंडिया के तो गाने हैं ही. इट पम्प्स यू अप. um, yeah, yeah. But mostly I listen Punjabi because क्या होता है, स्पीकर में जब गाने बजाते हो तो खुद के लिए नहीं बजाने पड़ते हैं, दूसरे भी होते हैं, तो टीम में मोस्टली लाइक आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, सो आई हाँ हैव टू हाँ. प्ले ओनली पंजाबी और हरियाणवी. इंग्लिश तो लाइक मोस्ट ऑफ देम डोंट अंडरस्टैंड. यू मेंशन फॉर द लव ऑफ योर फूड, सो हमें पता है कि यू लव योर मदर्स का हाथ का बिरयानी, लाइक देन चीज केक एंड चॉकलेट. उसके अलावा स्ट्रीट फूड बोला है, तो ऐसा कुछ दिमाग में है जो आप पेरिस में ट्राई करना चाहते यहाँ मिलेगा भी नहीं वो. हो? अच्छा. पेरिस का क्रोसॉन ट्राई करूंगी. एक बार पहुंचने तो दो पेरिस, देन आई विल सी. ओके ओके. हमने आपका सोशल मीडिया देखा था एंड वी सॉ दैट योर लव फॉर द कैमरा एंड इट्स प्रीटी विजिबल. सो इज दैट अ ऑफ बॉक्सिंग करियर ऑप्शन दैट यू आर लुकिंग एट, लाइक विल वी सी यू ऑन द बिग स्क्रीन एनी टाइम? नो यार, ऐसा कुछ नहीं है. आई मीन आई आई एम बिकेम जस्ट अ ओनली फैन. कंफर्टेबल. वो सलमान खान की रील देखे तो हम लाइक निखत जरीन कर सकती है एक्टिंग. एक्टिंग उसमें कहाँ ही एक्टिंग किया मैंने, बस हाँ. I was blushing in that whole video. I was just blushing and I was like, मेरे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि एक्सप्रेशन दूं मैं. ऑल द टाइम आई वाज जस्ट लुकिंग एट ग्राउंड, कभी थोड़ा इधर देख रही थी. इट वाज सो ऑकवर्ड. आई डू एक्ट, ऐसा नहीं है. जब ये दबमैश का जमाना था, हाँ 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 एंड हाँ. देन टिकटॉक आया, फिर देन अभी रील्स है, ऐसे तो मैं बना लेती हूँ. बट ऐसे कभी ऐसे सोचा नहीं है कि एक्टिंग और करूंगी लाइक या कुछ ऐसे. नहीं. That's out of my league, bro. आप निजामाबाद से थे. आपने यू हैव लाइक shattered too many stereotypes and done great for the boxing world, especially the women community and everything. So is there anything that you want to see when you hang your gloves, like at the end of your career or something like that? I mean, I always wanted to have my own academy and train the young kids from my state. Especially, it would be I mean, a great like honor for me if from my community people come forward, especially girls, come forward to learn boxing. So it will be a huge achievement for me because I know how much it takes to come out of our home and learn sport like boxing and make our name and make the country proud. So I know how much hard work it takes. So so yeah, it's one of my dream to teach the young kids from my state and make the country proud. So yeah. Okay, that's nice. One last question. So, any Mm. message or what would you want to give as an advice, a piece of advice to the young boxers, whether male or female, the aspiring boxers in India? What would be your one message to them be? Nothing. I just want to say that everyone have a dream, but to fulfill that dream, it takes hard work. Everyone has has a talent, but talent एक टाइम तक आपको हेल्प करता है, बट उसके आगे हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर नॉट इफ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, यू आर जस्ट डिपेंडिंग ऑन योर टैलेंट, सो वो कुछ हेल्प नहीं करेगा. सो जस्ट ऑलवेज बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर स्पोर्ट, वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योर सेल्फ. कि लाइफ में अप्स एंड डाउन तो होते रहते हैं, बट कभी गिव अप नहीं करना है. जस्ट कीप
going. One day your time will come, and I'm sure कि जब भी आएगा ना, ऊपर वाला जब भी देगा छप्पड़ फाड़ के देगा. So just have faith and just keep going. Thank you. I mean, like, I felt so motivated after you said this, irrespective of a different stream. But yeah, thank you so much.